اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس وقت ناظرین کرام پنجاب اسمبلی کے باہر ہے. یہ کہہ رہا ہوں کہ 27ویں نہیں 127ویں تک ہی جائیں گے، کیونکہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. عمران خان عوام کی نبض میں، عمران خان عوام کی رگوں میں خون بن کے دوڑ رہا ہے. کے لیے لڑیں گے. 27ویں آئینی ترمیم ہم سب کے حقوق پر ایک ڈاکہ ہے. آپ کے سامنے پنجاب اسمبلی کے باہر اس وقت پنجاب پولیس کی ایک بھاری نفری یہاں پر موجود ہے، جہاں پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، بلکہ جو ایم پی ایز ہیں، کارکن ان میں کوئی بھی نہیں، ایم پی اے جتنے بھی تھے وہ ناظرین کرام گیٹ سے باہر نکلے جھنڈے لے کر، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی مارچ کی شکل میں دوسرے گیٹ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. 27ویں ترمیم کے خلاف اس وقت نعرے بازی کی جا رہی ہے. آپ کے سامنے ناظرین کرام اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس وقت ناظرین کرام پنجاب اسمبلی کے باہر ہے. جناب اعلیٰ، اس وقت آپ کے سامنے یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کرام کہ اس وقت 27ویں ترمیم کے خلاف اس وقت پاکستان کے جو ایم پی ایز ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز اس وقت ناظرین کرام پنجاب اسمبلی کے باہر اس وقت آ چکے ہیں. ناظرین کرام شیخ امتیاز صاحب یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم شیخ صاحب. شیخ صاحب، 27ویں ترمیم آخر کیوں منظور نہیں ہے آپ کو؟ کیا وجہ ہے ایسا کہ یہاں پر آپ لوگ احتجاج کرنے کے لیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو پارلیمان ہے، سینیٹر، وہ ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ ترمیم منظور کریں گے. یہ فارم 47 سے ہیں. ہمارا پہلا جو تحفظ ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اگر یہ جیت کے آئے ہوتے تو کوئی بھی ترمیم کرتے، ہم اس سے قبول کرتے. دوسرا یہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو بالکل سلب کر لیا گیا ہے. عدلیہ کو پولیس سے بھی بدتر بنا دیا گیا ہے، اور یہ بھی چیز ہے، وہ ہمارے تحفظات ہیں. اس کے علاوہ جو استثناء ہے وہ تاحیات استثناء، یہ نہ تو یہ ایک غیر اسلامی بھی ہے، غیر اخلاقی بھی ہے. اس کو بھی ہم جو ہے وہ یہ جو استثناء ہے یہ ہم نے پاکستانی عوام کی فلاح کے لیے دیا ہوا ہے. اس میں کیا ہے؟ یہ تو پھر کہیں کہ یہ اب یہی 28ویں ترمیم لے آئیں جس میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہیں کہ جی ہم اوپر آ کے بھی حساب نہیں دیں گے. یہ تو اللہ توبہ استغفار توبہ استغفار، یہ بہت ناجائز، اور اس کو ہم اس لیے جو ہے وہ کنڈیم کرتے ہیں. ہم اس کو نہیں مانتے، اور یہ عوام کی اس میں کوئی بھلائی شامل نہیں ہے اس میں. تھینک یو سو مچ شیخ امتیاز صاحب. آخر میں بتا دیجیے گا، چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ نے کل ایک پیغام دیا تھا کہ ہم لوگ یہاں سے مارچ لے کر لاہور ہائی کورٹ کی طرف جائیں گے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پریس کانفرنس آپ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد مارچ بھی ہوگی، ریلیز بھی نکالیں گے آپ؟ نہیں، کیونکہ میڈیا سارا ادھر بلا لیا تھا. ادھر وکلا نے ہمارے آج صبح نکالی ہے ریلی، ادھر انہوں نے نکالی ہے. اب ہم یہیں سے ہی اس کو میڈیا سے خطاب کر کے 2 ایونٹ ہو گئے، ایک ادھر ہوا ہے، ایک ادھر ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. شیخ صاحب، جو لاہور ہائی کورٹ کے باہر نکلے ہیں وکلا، وہ نکلے ہیں باہر اور فوراً اندر چلے گئے، کیا ڈر ہے یا کیوں ابھی بھی وقت لینا چاہتے ہیں؟ کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ نہیں، میرا نہیں خیال، جو میری اطلاعات ہے، کیونکہ ہم تو اندر کر رہے تھے، میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے باقاعدہ ادھر دھرنا بھی دیا ہے. آپ کو شاید غلط اطلاع ہے، آپ دوبارہ سے چیک کر لیں. اور کب تک تحریک دیکھ رہے ہیں آپ لاہور سے نکل رہی ہے؟ تحریک تو ہم ہر وقت تحریک میں ہیں. جو اڈیالہ جاتے ہیں ہم، وہ بھی تحریک ہے. آج بار کونسل کے ڈفرینٹ اجلاس ہوئے ہیں، وہ بھی تحریک ہے. اب یہ تحریک کہیں کہ زیادہ پاورفل، جس میں عوام شامل ہوگی انشاءاللہ. اب آپ دیکھیں گے کہ عوام بھی اس میں شامل ہوگی انشاءاللہ. کرام اس وقت شیخ امتیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس وقت ناظرین کرام نابینا افراد کا بھی یہاں پر احتجاج یہاں پر ہے، اور جن کا مطالبہ ہے کہ پنجاب اسمبلی اس وقت یہاں پر ہمیں احتجاج روزگار نہیں دے رہی. تو اس وقت ناظرین کرام آپ کے سامنے دونوں ہی لوگ جو ہیں وہ تو پنجاب اسمبلی کے باہر ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ تو ریلی نکالی گئی. لاہور سے جو وکلا نکلے تو انہوں نے بھی پنجاب اسمبلی تک نکلے، اور نکل کے انہوں نے جو ہے آ کر صرف ٹوکن سے احتجاج کیا اور پھر اندر چلے گئے. اور ابھی اس وقت ناظرین کرام پنجاب کے جو ایم پی ایز ہیں وہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی اس وقت یہاں پر ناظرین کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج یہاں پنجاب اسمبلی کے پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن کے تمام ممبرز اکٹھے ہو کر یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آج یہاں پر جو واک کر رہے ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں سیکرٹری جنرل راجہ اپنا سلمان اکرم راجہ صاحب کی سربراہی میں. وہ یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کے کالے قانون کے خلاف تمام معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ اکٹھا ہے، اور ہم تمام ایم پی ایز اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہم تمام ایم پی ایز سب مل کر اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم آگے یہ کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم جو ہے، یار اس ایک سیکنڈ کہہ رہے ہیں آپ آئیں گے، کہ 27ویں ترمیم جو ہے
उसके जो रिपरकशंस होंगे मुआशरे के ऊपर, आम शख्स के ऊपर, वो कौम को भुगतना पड़ेंगे। NFC अवार्ड है, NFC अवार्ड जो है उसको ये कट करना चाह रहे हैं, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और इसके अलावा ये जो 27वीं तरमीम है ये जो बनाई जा रही है कुछ लोगों को एकोमोडेट करने के लिए, कुछ लोगों के जो मफाद हैं उनके दफा के लिए हम इसकी शदीद मुखालफत करते हैं। मैं सलमान अकरम राजा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो आपसे इस टॉपिक पर अब बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई भी और बात करने से पहले मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान आज सिर्फ एक ऐसी मुमलिकत है जहाँ ताकतवर जो है उसकी ख्वाहिश के मुताबिक अमल हो रहा है। कानून भी वो बनता है जो ताकतवर की ख्वाहिश के मुताबिक हो। हमारे जो बहन भाई यहाँ बैठे हैं, नाबीना हजरात, मैं उनको यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान उनके साथ खड़े हैं। रोज़गार उनका हक है, रोज़गार पाकिस्तान के गरीब अवाम का हक है। हम जो आपके सामने पेश हुए हैं इसीलिए पेश हुए हैं। महकूम अदलिया के बाद किसी का कोई हक नहीं रहता, ना जान का हक, ना माल का हक, ना रोज़गार का हक। 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया पर हमला किया गया है, अदलिया को महकूम कर दिया गया है। वो जज जो आपके मेरे हुकूक के लिए खड़े हो सकते थे, उन जजों को एक तरफ कर दिया गया है, उनसे ताकत छीन ली गई है। सुप्रीम कोर्ट को एक ज़ेली अदालत बना दिया गया है। ये जो हमारे बहन भाई यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, नाबीना हजरात, इनका एहतजाज और हमारा एहतजाज एक है। हमारा एहतजाज हर पाकिस्तानी का एहतजाज है, हर मजलूम का एहतजाज है, हर गरीब का एहतजाज है। आज हर गरीब बेसरो आसरा है। हर गरीब को ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा घर, तुम्हारी चादर, तुम्हारी चार दीवारी कुछ भी मुकद्दस नहीं है। हम जब चाहेंगे तुम्हारे घर को तोड़ेंगे, तुम्हारे बच्चों को उठाएंगे, तुम्हें जेलों में डालेंगे, तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे। अब कोई अदालत ऐसी नहीं है जो तुम्हें इंसाफ दे सके। तो हम इंसाफ के लिए खड़े हैं, हम अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े हैं, क्योंकि अदलिया की आज़ादी में आम पाकिस्तानियों की आज़ादी है। जिसके पास बड़ा ओहदा है, जिसके पास दौलत है, उसको अदलिया की ज़रूरत नहीं है। वो ओहदे और दौलत की बुनियाद पर अपनी ख्वाहिशात की तकमील करता है। अदलिया की ज़रूरत गरीब को है, अदलिया की ज़रूरत हमारे नाबीना भाइयों को है, अदलिया की ज़रूरत आपको है, अदलिया की ज़रूरत मुझे है। हम अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे। 27वीं आईनी तरमीम हम सब के हुकूक पर एक डाका है। इलेक्शन को लूटा गया, उस फ्रॉड को छुपाने की कोशिश है। आपकी राय को, आपके वोट को हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश है। तो हम अब चुप नहीं बैठेंगे, हम लड़ेंगे, हम सड़कों पे लड़ेंगे, हम पार्लिमान में लड़ेंगे, हम इमरान खान की रिहाई के लिए लड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान की रिहाई में हम सब की रिहाई है, इस कौम की आज़ादी है। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मैं एक सेकंड बेटा, वो कह रहे हैं आवाज़ नहीं आई, मैं दोबारा कर रहा हूँ। आपकी आवाज़ नहीं आई, वो कह रहे हैं शोर था ना वहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज पंजाब असम्बली के अपोजिशन के तमाम मेंबर्स यकजा होकर उन्होंने वॉक की है असेंबली से लेकर यहाँ तक अपने हकूक़ के लिए, अदलिया की हिफाजत के लिए। और ये जो 27वीं तरमीम है, ये जो 27वीं तरमीम का काला कानून है, जिससे सूबों में महरूमी फैलेगी NFC अवार्ड की वजह से, कि जिसके अंदर चंद मखसूस लोगों को के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए उन लोगों के लिए ये कानून बनाया गया है। तमाम MPAs तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत ये जो आज वॉक की गई है, हम सारे मिलकर इस जद्दोजहद के अंदर हर अवाम के, पाकिस्तान के हर अवाम के मेंबर के साथ हम शामिल हैं और इसकी शदीद अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं। और ये जद्दोजहद का जो आगाज़ आज जहाँ हुआ है, हमें जहाँ पर पार्टी जो प्लान बनाएगी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान
जो प्लान देगा हम तमाम MPs पंजाब असम्बली के उसके ऊपर अमल पैरा होंगे। इस वक्त नाज़रीन किराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप MPs को यहाँ पर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं जो इस वक्त 27वीं तरमीम के यहाँ पर ख़िलाफ़ निकले हुए। साथ ही सामने आप पंजाब पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद देख सकते हैं जो इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो PTI अरकान है यहाँ पर 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ निकले हुए और बताया गया था कल के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमज़ा की तरफ से ये पैगामात थे कि जो भी तरीके तहफ़्फ़ुज़ात आइन के जो मुतालबात हो गए उनके लिए हम अमन उनके साथ खड़े होंगे। और इसके ऊपर उन्होंने कल एहतजाज की कॉल ये दी थी कि हम लोग कल पंजाब असम्बली से निकलकर लाहौर हाई कोर्ट तक एहतजाज करेंगे। लेकिन हुआ ये कि लाहौर हाई कोर्ट में अपना एक एहतजाज मुनक्कद हुआ जो GPO चौक तक गया और दूसरी जानिब जो पंजाब असम्बली का वो गेट से निकल के यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये दो एहतजाज मुनक्कद किए गए सलमान अकरम राजा की क़यादत में। यहाँ पर अपोजिशन लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। 27वीं तरमीम में आपका जो भी मामलात में बताए जा रहे हैं कि इस वक्त 28वीं तरमीम भी आ सकती है, जिस तरह से इन्होंने मुस्तकिल ताया इस्तिस्ना दिया है, तो उस पर क्या लगता है आपको कि PTI का क्या इतना मौक़िफ़ है? मैं ये कह रहा हूँ कि 27वीं नहीं 127वीं तक ही जाएंगे क्योंकि इनसे संभाला नहीं जा रहा। इमरान खान अवाम की नब्ज़ में इमरान खान अवाम की रगों में खून बन के दौड़ है, खान लोगों के हलक में सांस बन के दौड़ है। तो इनसे वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, ना इन्हें समझ आ रही है। उसको रोकने के लिए सिर्फ एक शख्स को गिराने के लिए निज़ाम अदल गिरा दिया गया। इस मुल्क का हर निज़ाम ख़राब कर दिया गया सिर्फ इमरान खान को रोकने के लिए। आपको क्या लगता है कि इस तमाम तरमीमों के बावजूद आप किस तरह से अपनी पार्टी की एक्टिविटीज़ जो हैं, एहतजाज जो हैं, उनको कामयाब बना पाएंगे? क्योंकि अब तो आपके तमाम हाथ पाँव भी बांध दिए गए। यार हाथ पाँव बांध दिए जाएँ तो एक बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला कुरान में कहता है वो मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। एक इंसान प्लान बनाता है और एक अल्लाह तबारिक व तआला का प्लान होता है। इंसान के बस में हो तो उसका तो पेट ही नहीं भर सकता, कब्र की मिट्टी सिर्फ इंसान का पेट भरती है। तो इसलिए जो मर्जी इंसान प्लान बनाए, अल्लाह तबारिक व तआला से उम्मीद है और हम और इhtजाज जारी और सारी रहेगा और हम सब सीसा पिलाई दीवार की तरह अवाम के साथ और अवाम के हकूक़ की तर्जुमानी करते रहेंगे। नाज़रीन किराम इस वक्त अपोजिशन लीडर फ़ारूक मोहन साहब यहाँ पर मौजूद थे। अभी आप देख सकते हैं कि जो पंजाब असम्बली के MPs हैं वो इस वक्त एहतजाज यहाँ पर करते चले जा रहे हैं। नाज़रीन किराम इस वक्त ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं कि इस वक्त आपके सामने पंजाब असम्बली के जो अरकान हैं वो इस वक्त नाज़रीन किराम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं जिनका मुतालबा है कि 27वीं तरमीम बिल्कुल हम मुस्तरद करते हैं। नाज़रीन किराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था वो चंद महज ख़त्म दूर तक चला और फिर ख़त्म हो गया। लेकिन आप पुलिस यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन को कहूँ कि इस वक्त नाज़रीन किराम पुलिस को इस वक्त दिखाएँ तो इस वक्त नाज़रीन किराम पंजाब असम्बली के गेट के बाहर भी इस वक्त ये एहतजाज मुनक्किद है। ये आपके सामने पंजाब असम्बली के बाहर इस वक्त पंजाब पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं बल्कि जो MPs हैं, कारकुन इनमें कोई भी नहीं, MPA जितने भी थे वो नाज़रीन किराम गेट से बाहर निकले झंडे लेकर और फिर उसके बाद वो अपनी मार्च की शक्ल में दूसरे गेट की तरफ रवाना हो चुके हैं पंजाब असम्बली के अंदर। ये इस वक्त सूरत हाल है इस वक्त पंजाब असम्बली की।